Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope so you all are doing well. So here is a part 5 of chapter number 4 using Excel as database. In last video there is a recapitulation of using a form, that how you can use a form in Excel, that I explained you. Okay, now today is a new topic for chapter number 4 using Excel as database. So welcome to computer class, and I hope so you will concentrate here nicely and you will get all points whatever I am going to explain you. So in today's video you are going to learn how to use data validation. First of all, before showing you how you can use data validation, I want to say you that what is a validation. So data validation is used to restrict the cell entries within a specified range. It means that if you want to validate any data for any rows or columns, okay, that you want that in this column you want only whole number, in this column you want only between this number to this number, particular column you want suppose that only decimal number and whole number both. Okay, suppose in any cell you want only date, that time you can validate data for selected columns and rows. Clear everyone? So at that time we use data validation option in Excel. Okay, so whenever you validate any cell entries, at that time if you try to enter data beyond the specified limit in the selected range, an error message is displayed on your screen. Okay, then afterward you have to retry it, when means that you have to click OK and retry to enter the data according to your validation. Clear everyone? So let's start. First of all we have to open Microsoft Excel. Okay, so I am going to explain you practically, so that's why you have to concentrate on the screen whatever I am explaining you. So Excel is open by clicking on taskbar. There is an Excel button on a taskbar, so click on it. Clear? Here I am already written roll number, name and marks. Okay, now suppose that I want to validate this my cell entries roll number. Okay everyone, so what I have to do, I have to just select that number of cells where I want data validation. Suppose that I want here till here. Okay, so select it. Select means what? You have to keep your mouse pointer in the center of the screen, center of the cell, left mouse button press, click, hold it down and drag it down like this. Okay, no need to click on this dot, it means dragging नहीं करना है, हमें select करना है. Select means in the center and select. सपोज ये 6 सेल के लिए मुझे डेटा वैलिडेशन चाहिए इन रोल नंबर. क्या दे सकते हैं डेटा वैलिडेशन? एंड एनीवन कैन गेस इट? यस, रोल नंबर में हम एक चीज़ अलाउ कर सकते हैं, दैट जो भी सिलेक्टेड सेल है उसमें 0 रोल नंबर नहीं आना चाहिए. और सपोज ये लास्ट सेल जो है वो 5 रोल नंबर के लिए है, तो 5 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अवर वैलिडेशन. ओके, क्योंकि 0 रोल नंबर, यू नो वेरी वेल, हमारे क्लास में कभी भी किसी का रोल नंबर 0 होता है? नो. सो लेट्स स्टार्ट. पहले सिलेक्ट करो. ओके, देन गो टू डेटा टैब. कौन से टैब में जाना है हमें? डेटा टैब. इन डेटा टैब फाइंड आउट डेटा वैलिडेशन ऑप्शन. विच ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट? डेटा वैलिडेशन. ऊपर वाले से ऊपर ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो डाउन साइड. ओके, so click on drop down arrow and choose the option data validation. Okay, so click on data validation. It will give you 3 things, 3 buttons on it: setting, input message and errors. Means that validation देने के बाद आपको अगर कोई गलत इनपुट देता है तो कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेंगे? that one comes here. Okay, suppose in setting you want between or a whole number, because you know very well that roll number is not in decimal number, और अगर आप decimal number enter करने जाओगे so it will not take. Okay, so पहले तो हम whole number दे देते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than equal to, less than और equal to. हम देते हैं between. ओके, between कहाँ से कहाँ होना चाहिए? between मिनिमम नंबर इज़ 1, क्योंकि 1 से कम मतलब 0 नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1.
first point is 1 because minimum number is 1 we have to give. उससे कम वाला नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. एंड द मैक्सिमम नंबर इज 5 क्योंकि हमने कितने सेल्स सिलेक्ट किए हुए हैं, 5 सेल्स, 1 2 3 4 एंड 5. तो मैक्सिमम नंबर 5 लेगा. ठीक है, ये हो गया. नो नीड टू क्लिक ऑन ओके राइट नाउ. इनपुट मैसेज दे दो पहले. सो गो टू इनपुट मैसेज एंड इनपुट मैसेज में हेडिंग दो मस्ट बी, roll number must be whole number, must be whole number and between 1 to 5. ओके, ये हो गया हमारा इनपुट मैसेज. ओके, अलर्ट में क्या दिखाएगा, ओके कर दिया, क्लिक ऑन ओके. सो आपको जो जो सेल में हमने वैलिडेशन दिया है वो सेल अगर सिलेक्टेड होगा तो उसके नीचे आपको यहाँ पे मैसेज दिखेगा. इट मीन्स दैट अगर आप कोई भी अदर पर्सन टाइपिंग कर रहा है सो उसको पता चल जाएगा दैट हियर इज़ अ वैलिडेशन और ये सेल में मुझे क्या इंसर्ट करना है. सो रोल नंबर मस्ट बी होल नंबर एंड बिटवीन 1 to 5. सबसे पहले हम तो 1 से लेस देन करके देखते हैं कि मिनिमम 0 अगर देते हैं एंड प्रेस एंटर की, it will give you the error message. okay, that value is you enter is not valid क्योंकि हमने कौन सा मिनिमम नंबर लिया हुआ है, 1. ओके, सो क्लिक ऑन रिट्राई. चलो एक काम करते हैं, डेसिमल नंबर देते हैं 1.5. प्रेस एंटर की. Look at this. It also gives you the error message that you not entered valid. ओके, सो रिट्राई. क्यों नहीं ले रहा है डेसिमल नंबर, क्योंकि हमने हमें कौन सा नंबर देना है, होल नंबर. सो गिव द 1. नाउ वी टेक यस. क्या ये सेकेंड सेल में भी वैलिडेशन है, यस, क्योंकि यहाँ पे भी शो कर रहा है. लेट्स एंटर 2, लेट्स एंटर 3, हियर 4. चलो यहाँ लास्ट है, let's give 6 number and press enter. It takes no. क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितने नंबर्स लेना है, ओनली 1 to 5. if you give greater than the 5 it will not take. so retry and give 5 here. क्लियर एवरीवन. अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई मैसेज नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने कितने सेल सिलेक्ट करके वैलिडेशन दिया था, ओनली यहाँ से यहाँ तक. तो यू कैन सी दैट यहाँ पे मैसेज आ रहा है वैलिडेशन का. ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं नो मैसेज इज देयर. अंडरस्टूड. तो ये हो गया वैलिडेशन. ठीक है, नाउ लेट्स एंटर नेम ABCDE. क्लियर. नाउ मार्क्स. ओके, मार्क्स के लिए अगेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेल. यहाँ पे भी सपोज आपको देनी है वैलिडेशन, तो कैसे देंगे, तो पहले सिलेक्ट करो डेटा टैब एंड फाइंड आउट डेटा वैलिडेशन. इन डेटा वैलिडेशन चूज द डेटा वैलिडेशन ऑप्शन. ओके, नाउ गो टू सेटिंग. ओके, नाउ हियर नो एनी वैल्यू, होल नंबर लेंगे हम. ठीक है, नो डेसिमल भी ले सकते हो. ठीक है, अगर डेसिमल नहीं लिया और होल नंबर लिया तो किसी स्टूडेंट के पॉइंट्स में मार्क्स है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट. सो टेक अ डेसिमल नंबर. ओके, नाउ यहाँ पे देंगे हम सपोज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, सपोज दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू में मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू में मिनिमम नंबर कितना होगा, 1. okay, it means that it will accept 1 also and greater than 1 also. अगर हमने सिर्फ ग्रेटर देन दिया होता तो 1 को भी एक्सेप्ट नहीं करता और 0 को भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि 1 से ग्रेटर, नॉट इक्वल. क्लियर. सो गिव द ग्रेटर देन और इक्वल. अब यहाँ से कुछ भी दे सकते हो, बिटवीन भी दे सकते हो कि 1 मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 100 होना चाहिए. अंडरस्टूड. ये भी दे सकते हो. ठीक है, सो लेट्स गिव मिनिमम एंड मैक्सिमम बिटवीन. What input message you have to give? You can enter decimal number and between 1 to 100. Okay, and click on OK. So यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा. Clear everyone? So
Suppose that I am entering 0 and press enter. It is taking no, क्योंकि हमें किसके किसके बीच में लेना है 1 to 100. Okay, so retry and give 1. It's taking. चलो let's do it. Decimal number 56.5. It is taking yes. 90 taking yes. But suppose that 110. Enter. It is taking no, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कौन सा है बिटवीन, हमें कौन से बीच में लेना है 1 to 100. 100 से ज़्यादा हुआ इट मीन्स इट विल नॉट एक्सेप्ट. क्लियर? इट मीन्स यू हैव टू रिट्राई इट लाइक दिस. क्लियर एवरीवन? 105 means 100.5 also you give, it will not accept. Why? Because 100.5 means what? 101 as a whole number, right? So click on retry and give suppose 95.5. ओके, चलो हम इसका वैलिडेशन चेंज करते हैं. नाउ हियर इज अ नो वैलिडेशन. अगर आप यहाँ पे 105 भी एंटर करोगे इट विल टेक, क्योंकि हमने कितने सेल सिलेक्ट किया था? ओनली फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, अब सपोज यही सिलेक्ट करके हम डेसिमल नंबर की जगह पे उसको कर देते हैं होल नंबर. सो फाइंड आउट डेटा वैलिडेशन एंड जो भी सेटिंग में डेसिमल नंबर था उसकी जगह पे हम कर देते हैं होल नंबर एंड क्लिक ऑन ओके. क्लियर? यहाँ देखो, ठीक है, 56.5. नाउ इट इज एंटरिंग, इट इज एक्सेप्टिंग. नो, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? बिकॉज हमने कौन सा वैलिडेशन दिया? होल नंबर. इट मीन्स आप होल नंबर ही एंटर कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? सेम हियर 95.5 एंटर करो. इट्स नॉट टेकिंग नाउ क्योंकि हमने वैलिडेशन चेंज कर दिया फ्रॉम डेसिमल नंबर टू होल नंबर. अंडरस्टूड? तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन, जिससे क्या होगा? इफ अदर पर्सन यूजिंग योर एक्सेल शीट, ही कैन अंडरस्टैंड, ही और सी कैन अंडरस्टैंड दैट विच वैल्यू यू हैव टू एंटर इन पर्टिकुलर सेल. क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया डेसिमल डेटा वैलिडेशन. वन थिंग आई वांट टू से दैट दिस प्रैक्टिकल यू हैव टू डू टुडे बाय योरसेल्फ इन योर लैपटॉप और इन योर पीसी. क्लियर एवरीवन? एंड try to validate different way with different for different field. You can take anything also, like employee's name, okay, date, time, anything you can take and you can validate it by yourself. Okay, but one time please do this practical by yourself. एक अलग अलग ऑप्शंस यूज़ करके आप ट्राई करिए कि किस तरह से और किस चीज़ पे हम वैलिडेशन दे सकते हैं. ओके, यू कैन टेक इट फॉर ऑल 40 नंबर्स ऑल्सो, but one time you must have to do this practical for your better performance, better understanding. Clear everyone? I hope you will do it. And then afterward, if at any point you will stop, you can immediately ask me that doubt in comment section. I will clear all your doubts by replying it. Okay, but one time you must have to do it again, I am saying. Okay, till then be happy and stay healthy. Bye everyone.